नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 3:55 हो चुके हैं। 5 मिनट के अंदर हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सभी पार्टिसिपेंट्स से विनती है कि अगर आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं तो उसे चैट बॉक्स में अवश्य डालें। क्वेश्चन आंसर सेशन ये आज के स्पीकर के सेशन के बाद कंडक्ट किया जाएगा। Good evening, everyone. We shall be starting in 5 minutes' time. In case you have any questions, please do put it in the chat box. The questions shall be taken up for answering by the speaker at the end of his speech. Thank you. Good evening, one and all present over here. Satyavan sir, if it's all right and if you're ready, can we start today's session? Absolutely, sir. I'm ready. So please start the session. Okay.
Right now, as I can see, there are about 166 participants. I am sure that within the next few minutes, it will cross the 250 number like every day. So should we start, sir, immediately? Yes, sir. Yes, sir. Please. Okay. Yeah. Good evening, everyone. On behalf of the KJ Somaiya College of Arts and Commerce, the management of Somaiya Vidya Vihar, I extend a warm and hearty welcome to all of you. जैसे हम सब जानते हैं कि ये 7 दिवसीय क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है और इसके 4 सत्र जो हैं वो ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं। आज 5वां दिवस है और आज 5वें दिवस में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, संवाद साधने के लिए और उसी के साथ साथ उनका ज्ञान जो है हमारे के साथ बांटने के लिए डॉक्टर सत्यवान हाणेगावे सर उपस्थित है। आज के विषय पर जिस पर वो बात करेंगे और हमसे चर्चा करेंगे, ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक शिक्षण संस्था के लिए। ये विषय है इंट्रोडक्शन टू एक्रेडिटेशन क्राइटेरिया, जो नैक के नियमावली है, नियम है, जो हर एक शिक्षण संस्था के लिए, उच्च शिक्षण संस्था के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हर 5 साल के बाद ये साइकिल जो नैक की आती है उसमें से हर एक शिक्षण संस्था को जाना पड़ता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ डॉक्टर सत्यवान सर आज बात करेंगे। डॉक्टर सत्यवान सर ये हमारे कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है और उसी के साथ साथ आईक्यूएसी के कोऑर्डिनेटर की बागडोर ये कुशलता से संभालते आ रहे हैं। हमारे कॉलेज को रीएक्रेडिट होकर ए ग्रेड मिलना, इसमें भी उनकी अहम भूमिका थी। इसी के साथ साथ उनके अगर शिक्षण की पदवियां देखें तो हमको एक प्रेरणा मिलती है कि हमको और कितना सीखना बाकी है। He has completed his masters in English literature along with UGC NET. उसी के साथ साथ उन्होंने लॉ में भी पदवी हासिल की हुई है। He has completed his MBA and along with that he has also completed his doctoral studies and PG diplomas. For more than a decade and a half, almost 16 years, he has been in teaching. इसी के साथ साथ ऐसा कोई शायद मंच नहीं होगा राज्य या अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर जहां पर इनको आमंत्रित किया नहीं गया हो। बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च जर्नल्स जो हैं, यहां पर इनके लेख और शोध प्रबंध जो हैं वो प्रकाशित किए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ इनकी 2 किताबें भी प्रकाशित है, जिसमें से एक किताब ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने प्रकाशित की हुई है। He is also a recognized MA and PG teacher for more than a decade now. He is a recognized PhD guide in the University of Mumbai and the Indira Gandhi National Open University as well. He is a member of Board of Studies in many colleges and universities, including the Baba Saheb Ambedkar Technological University, उसी के साथ साथ University of Mumbai, SNDT Women's University, and many more. He has also been invited as a resource person by numerous colleges and universities across the state of Maharashtra as well as all over India. So it is a proud privilege actually to be working in the same institution in which Dr. Satyavan Hanegawe sir has been working. With that, I will request on behalf of the organizing committee as well as all the participants out here for Satyavan Hanegawe sir to take control of today's program and begin with his session. The participants, sir, have been very much active over the last 4 days. They have been commenting, they have been putting across their questions, their queries in the chat box. So at the end of your address, we'll be having some time for Q&A and a general discussion on the basis of certain queries if they are there. So once again, on behalf of everyone present over here, I request Satyavan sir to begin with his address. Looking forward to your address, sir. Thank you. Yeah. Thank you so much for such a nice and sweet words, my dear Gaurav. Respected all my dear colleagues from the KJ Somaiya College of Arts and Commerce, all the participants across the India,
we have received an immense response for our activities under this 7 days quality enrichment program. And my colleagues have been, taken initiative, and this initiative is going to not only benefit the Paramas institutions, but also the institutions across the India. Once again, I welcome all the participants, and uh, with your permission, I will start with my a brief presentations. At the outset, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि NAC accreditation या re-accreditation की जो प्रक्रिया है, वो कोई 1 घंटे या 1.5 घंटे में ये तो कंप्लीट नहीं होगी। कई अनेक क्राइटेरियाज है इसमें, कई अनेक पहलू है इसमें, तो उन यदि पहलुओं को यदि हम समझने की कोशिश करें तो थोड़ा-सा वो समय तो ज़रूर लगेगा। लेकिन हमें ये लिमिटेशंस है, इस लिमिटेशंस को मैं ध्यान में रखते हुए इस प्रेजेंटेशंस को केवल आपसे संवाद करने के लिए या आपके साथ में इस पर चर्चा करने के लिए ये मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो भी आपका विचार हो या आपका किसी प्रकार का प्रश्न हो, वो आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए और वो मुझे सामने नज़र आता जाएगा। और भले ही ऑर्गेनाइजर्स ने इस प्रकार की ये नियमावली बनाई है कि आप एंड में इस चीज़ का जो भी है समाधान करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीच में भी आपके कोई सवाल हो तो भी मैं लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये थोड़ा सोचना होगा कि कभी-कभी क्या होता है कि थॉट प्रोसेस को कभी ब्रेक नहीं किया जाए। तो वो थॉट प्रोसेस के जैसे ही खत्म होता है, हम लोग शुरू करेंगे। नैक एक्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी लिमिटेशंस है यहाँ पर, वो लिमिटेशंस ये है कि मैं उन सारी नुआंसेस जिसको कहा जाता है, यानी कि छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, उस पर तो मैं आपको ध्यान नहीं दूँगा। केवल क्राइटेरियाज़ क्या है, प्रोसेस क्या है और नैक क्यों ज़रूरी है, इन पर मैं थोड़े आपसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि बिकॉज़ मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और भले ही हिंदी मेरी मातृभाषा न होते हुए, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि वो हमारी राष्ट्र की भाषा है और मैं अपनी राष्ट्र की भाषा में बोलने की कोशिश ज़रूर करूँगा। हो सकता है कि कई जगहों पर मैं लड़खड़ा जाऊँ, लेकिन आप लोग मुझे साथ देते जाइएगा। Because speaking in Hindi is not as much as fluent as the way we speak in English. Anyway, but we will try to cover whatever the way we feel to. तो मैं NAC accreditation और re-accreditations के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए कि क्या है कि जहाँ तक हमारे भारत देश की बात करेंगे, हाँ, एक बात है जो आपसे मैं कहने से पहले, अभी इतने जितने भी सेशंस आपके हो चुके हैं, ये सारे के सारे सेशंस प्रैक्टिकल रहे हैं। आपको डे टू डे लाइफ में आपके जैसे ही आप अपने सीट पर बैठते हो, वहाँ पर उन सारी चीज़ों का आपको कभी न कभी किसी न किसी तरीके से उसका उपयोग या उसकी उपयुक्तता होती रही है। इसलिए आपको थोड़े से आपके क्या बड़े प्रैक्टिकल लगेंगे। लेकिन आज का जो मेरा सेशन है ये पूरी तरह से आपको ऐसे लगेगा कि थोड़ा-सा थ्योरेटिकल है, लेकिन ये भी सेशन उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं मानता हूँ टीचिंग जो फैकल्टीज़ है, जो टीचर्स है, टीचर एक सिक्के के एक पहलू है और दूसरे सिक्के के दूसरा पहलू है जो नॉन टीचिंग, यानी कि हम इनको कहेंगे सपोर्टिंग स्टाफ कहेंगे। जब तक ये दो बाजू ताकतवर नहीं बनेंगे, तो सिक्के की उतनी कीमत नहीं बनेगी, ये मैं मानकर चलता हूँ। क्योंकि केवल टीचर होने से कोई कॉलेज या कोई संस्था नहीं चलती है। टीचर के साथ में नॉन टीचिंग होना चाहिए और उनका कंट्रीब्यूशन, मैं कहता हूँ कि इक्वली 50% इफ द टीचर्स आर कंट्रीब्यूटिंग, 50% इज कंट्रीब्यूटेड बाय नॉन टीचिंग स्टाफ. So therefore, so this idea of enrichment was just to keep this idea in mind, that unless you are aware about what is NAC and what are the parameters for the NAC, what are the criteria for NAC, and how do we understand them, and at least to have a brief understanding about those criteria,
So I'll try to cover up with that. इनिशियली ये तो आप इस बात को तो मानकर चलते हैं कि अब ये बात सर्वश्रुत भी है कि भारत एक सबसे एक लार्ज डेमोक्रेसी है, एक डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम है हमारा, और पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि उस डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम को आप कंपेयर करोगे तो हमारे यहाँ जिस प्रकार का डाइवर्स सिस्टम है वो शायद ही किसी राष्ट्र में वह होगा। प्राइवेटाइजेशन हो, एक बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन हो, अनेक संस्थाओं को मिलने वाली ऑटोनॉमी हो, या अनेक नए-नए प्रकार के जो प्रोग्राम्स अभी जो इमर्ज हो रहे हैं, और उन प्रोग्राम्स को किस प्रकार से एक्सेसिबिलिटी यानी कि उससे विद्यार्थियों को कैसे कनेक्ट किया जाए, और विद्यार्थियों को कनेक्ट करने के बाद उन प्रोग्राम्स की क्वालिटी कैसे बरकरार रखी जाए, या उस क्वालिटी को कैसे एनरिच किया जाए, इन सारी चीजों को देखने के लिए ये जो संस्था बनाई गई, और इस संस्था का नाम था नैक, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, जो कि 1986 की हमारी जो शिक्षा नीति पहली बार यानी कि शिक्षा नीति अपनाई गई, अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी फिलहाल आई है, लेकिन उसके पहले की जब 1986 की बात करें तो उस पॉलिसी में ये बात रखी गई थी कि एक इंडिपेंडेंट और नेशनल एक्रीडेशन एजेंसी होना चाहिए सारी एजुकेशनल संस्थाओं पर देखरेख करने के लिए, उनकी क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उनको क्वालिटेटिव कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए। तो इस तरह से इस नैक का जन्म हुआ 1994 में, और आज भी नैक यूजीसी के साथ में, जैसे यूजीसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसी तरह से नैक भी एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में स्थित है। और इतना ही नहीं बल्कि ये एक आज के पूरे हायर एजुकेशन की एक इंटीग्रल बॉडी बन चुकी है, और इसके अनेक व्यक्ति जो है वो सारे एक्सपर्ट्स होते हैं अनेक फील्ड के, और इनकी पूरी काउंसिल होती है जिसको जनरल काउंसिल कहा जाता है। वो जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी ये दोनों मिलकर इसके पॉलिसीज डिसाइड करती है। उसमें सीनियर एकेडमिशियंस होते हैं और अनेक इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए होते हैं, और इसमें गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स रखे जाते हैं। सो इसलिए नॉन टीचिंग की ये जरूरत है कि ये मैं मनोज काशिकर को ये बात उन्होंने एक अच्छी बात इसी में कही कि कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे समझते हैं कि नॉन टीचिंग इज नॉट द एक्चुअल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। आई एम सॉरी, ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन यदि सोचते हैं तो उस इंस्टीट्यूशंस की मैं आलोचना करता हूँ, और उस इंस्टीट्यूशंस को इस बात का शायद पता होगा कि नॉन टीचिंग के बिना कोई टीचिंग होती नहीं है। भले ही टीचर हो लेकिन नॉन टीचर्स ना हो तो कोई टीचिंग नहीं होगी। मनोज जी, ये बात सही है आप जो कह रहे हैं, कुछ हो सकते हैं, लेकिन ऐसी संस्थाएं भी है जहां पर ये दोनों, मैं जैसे मैंने कहा आपको कि एक दोनों साइड के जो साइड्स हैं, और ये एक सिक्का तभी काम आएगा जब दोनों उसके साइड्स होते हैं। खैर, आपके कमेंट्स आते रहेंगे, बीच बीच में आपके कमेंट्स में लेते रहूंगा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जो आती है कि एक्रीडेशन क्यों चाहिए, क्यों संस्थाओं को एक्रीडेट करना है अपने को, यानी कि संस्थाओं को अपने आप को एक्रीडेट क्यों करें। एक बात है, जैसे मैंने आपको कहा शुरू में कि हमारा एक डाइवर्स सिस्टम है, और हमारी डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम है, एक डाइवर्स है ना, अलग अलग फैकल्टीज को केटर करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहीं पर इंजीनियरिंग हो, या कहीं डिप्लोमा हो, या कहीं कुछ प्रोफेशनल कन्वेंशनल एजुकेशन एंड फैकल्टीज हो, मेडिकल एजुकेशन हो, पैरामेडिकल एजुकेशन हो, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन हो, ऐसे अनेक प्रकार के सारे ये फैकल्टीज है। लेकिन इन सारे फैकल्टीज को एक क्वालिटी के मापदंड में बिठाने के लिए, उनकी रिलेवेंस को है ना पूरे लोगों तक, उनको यानी कि लोगों तक उसकी रिकग्निशन करवाने के लिए हमें एक्रेडिटेशन जरूरी है। सो एजुकेशन में ये बड़ा ही अहम रोल प्ले करता है। इतना ही नहीं,
कि जिस प्रकार की फाइंडिंग्स इस एक्रेडिटेशन प्रोसेस में होती है, उन फाइंडिंग्स पर उस सारी इंस्टीट्यूट द्वारा काम किया जाता है, उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। शायद हो सकता है कई अनेक कॉलेजेस में, आप जिन कॉलेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो सारे कॉलेजेस में हो सकता है कि नैक एक्रेडिटेशन हो चुका होगा, और आपने देखा होगा कि नैक आने से पहले या नैक न होने से पहले और नैक आने के बाद संस्थाओं में किस प्रकार का बदलाव आया है। और ये भी आप देख रहे होंगे कि जो जितने भी जो क्वालिटी मेथड्स होते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव जो स्ट्रेटजीज होती है, यानी कि क्वालिटी को बरकरार करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए जो एफर्ट्स होते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्गुमेंट करके उसे और अपग्रेड करने की जो कोशिश की जाती है, वो केवल एक्रीडेशन की वजह से की जाती है। और नैक ये बात मानकर चलती है कि हर एक इंस्टीट्यूशंस की अपनी अपनी एक बेंचमार्किंग हो। बेंचमार्किंग यानी कि क्या, कि बेंचमार्किंग यानी कि उसकी एक पहचान हो। और जितने भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस है, आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे कि आज के इस कॉर्पोरेट जमाने में हर एक हर एक अपना कॉर्पोरेट जो एंटिटी होती है, वो अपनी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। ओके, सबसे पहले इस बेंचमार्किंग का जो तरीका आया, आपने शायद जेरोक्स कॉर्पोरेशन का नाम सुना होगा। ये जेरोक्स कॉर्पोरेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अभी आप जहाँ पर जेरोक्स वगैरह सब निकालते हैं, वो जो वही जेरोक्स कॉर्पोरेशन, यानी कि जो जेरोक्स की मशीनें बनाते हैं, उनसे ये सबसे पहले आइडिया आया 1970s में। और इस बेंचमार्किंग के तरीके को अपनाया गया। तो बेंचमार्किंग में क्या होता है कि बेंचमार्किंग किसी भी ऑनगोइंग सिस्टमेटिक जो प्रोसेस होती है उसको मेजर किया जाता है। उसे अन्य उसी प्रकार के सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो संस्थाएं होते हैं उनके साथ में कंपेयर किया जाता है, और उस प्रोसेस को या उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया जाता है, और वहाँ के जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस इश्यूज है या कुछ जो सवाल होते हैं, उन सवालों को वो यदि वो उसके सवालों के जवाब ढूंढे जाते हैं। तो इसीलिए जैसे सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, आर वी परफॉर्मिंग बेटर देन वी हैव एवर परफॉर्म्ड अर्लियर, are there any other organizations that are performing well from the what we have learned, यानी कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो हम जिस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं वो भी इसी प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं, हमसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और क्या ऐसी हमने कोई प्रैक्टिसेस अपनाई हैं जो हमारे इस परफॉर्मेंस को एक बड़े लेवल पर है ना रिकग्नाइज करती हो। तो इस तरह की जो सवालों को लेकर ये बेंचमार्किंग का आइडिया आया, और उसी बेंचमार्किंग के तहत जो है ये नैक एक्रेडिटेशन की प्रोसेस शुरू हो गई हमारे भी भारत में, वो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। और यही जरूरी है कि जैसे बेंचमार्किंग अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। अलग, जैसे आपने कभी सुना होगा कि इंटरनल बेंचमार्किंग, इंटरनल फंक्शंस की बेंचमार्किंग है, और कोई कॉम्पिटिटिव फंक्शंस की बेंचमार्किंग है। जेनेरिक यानी कि जो जैसे कन्वेंशनली जो चले आ रहे हैं ऐसे चीजों पर भी बेंचमार्किंग हो सकती है। ओके, तो कोई इंटरनल बेंचमार्किंग विद इन ऑर्गेनाइजेशंस हो, या एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, या वो कंपैरिजन कंपैरेटिव इस पर चीज पर आधारित हो, या फंक्शनल बेंचमार्किंग है परफॉर्मेंस पे आधारित हो। तो ऐसे अनेक अलग सवाल लेकर ये नैक एक्रेडिटेशन का एक प्रोसेस बनाया गया, और इस तरह से नैक एक्रेडिटेशन ये हमारे लिए जरूरी बनाया गया कि जो भी इंस्टीट्यूट इस इन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, उस इंस्टीट्यूट को हम अपने आप को असेस करने के लिए हेल्प करेंगे, ये नैक कहता है। और उनको एक पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे कि ये पैरामीटर्स है, और इन पैरामीटर्स के आधार पर हम है ना उस इंस्टीट्यूट का बेंचमार्किंग करेंगे, और वो किसी तरह से वो ए ग्रेड हो या बी ग्रेड हो या और कोई ग्रेड हो, और उस आधार पर तो उससे हमें जरूर बदलाव नजर आ रहे हैं, इस बात को तो हम जरूर मान के चलेंगे। तो यही जरूरी है। तो इसलिए एक कुछ वैल्यूज रखे गए, कोर वैल्यूज जिसको कहा जाता है, जिसके आधार पर ये पूरी ना नैक की प्रोसेस बनी हुई है।
लेकिन इस वैल्यूज को लेने से पहले एक साइड होबड़े का एक दिया गया एक सवाल है, उस सवाल को जवाब देते हुए मैं आपको आगे चलता हूँ। उनका कहना है कि व्हाट अबाउट लैब असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट, व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर देम, व्हाट इज पॉलिसी ऑफ प्रमोशन ऑफ लैब असिस्टेंट. One thing I must tell you, Sai Doble, that the lab assistant is a part of this entire education system, and he or she is having a major role to play in the entire academic process of learning and then teaching or evaluation, in all the sense, and also in order to create an infrastructure, especially to lend the learning. लैब का वहाँ सवाल आता है, जैसे किसी प्रकार की भी लैब हो, बायो की लैब है, केमिस्ट्री की लैब है, कंप्यूटर की लैब है, तो बिना लैब का कंप्यूटर सीखा जाए ऐसा तो होगा नहीं, का बिना बायोलॉजी लैब की कोई बायोलॉजी की क्लास ली जाए ऐसा तो होगा नहीं. इसीलिए लैब असिस्टेंट का रोल यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर्स के इवैल्यूएशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑगमेंटेशन के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए लैब असिस्टेंट का रोल आता है. उसी के साथ में जहां टीचिंग और यानी कि लर्निंग, ये दो प्रोसेस में जो सपोर्टिव जो रोल होता है वो लैब असिस्टेंट का होता है. इसलिए लैब असिस्टेंट हैज गॉट अ वेरी मेजर रोल टू प्ले इन क्राइटेरिया नंबर 2 एज वेल एज इन क्राइटेरिया नंबर 4 ऑल्सो. एनीवे, हम उन क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे आगे से. खैर, अभी इनके मैं आगे चलता हूँ. यानी कि कोर वैल्यूज है जिसके आधार पर ये नैक की प्रोसेस रखी गई है. सबसे पहले तो एक ओवरऑल राष्ट्र का एक डेवलपमेंट हो, यानी कि उसका विकास हो, यानी कि सभी जो भी एलिजिबल जो सिटीजन्स है, दोज हु विश टू हैव एन एक्सेस टू द एजुकेशन, दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द एम्पल अपॉर्चुनिटीज. ये सबसे बड़ा एक उसका पैरामीटर है. यानी कि कुछ ऐसी एरियाज है जो हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो भले एकेडमिक टीचिंग लर्निंग के प्रोग्रेशन से रिलेटेड हो, या एकेडमिक प्रोग्राम से रिलेटेड हो, या किसी कम्युनिटी को पूरे एंगेज करने की बात हो. इन सारे पैरामीटर्स को पकड़कर ये एक नेशनल डेवलपमेंट का मिशन हमें है ना पूरी तरह से अटेन करना है. ओके, तो फोस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज. ओके राजेंद्र जी, आईएसओ और नैक कंपैरिजन के लिए पूरा एक अलग से सेशन लगेगा, तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं आईएसओ और नैक यहाँ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, वरना मेरा दिया गया 1 घंटे का जो समय है या 1.5 घंटे का समय है उसी में निकल जाएगा. सो राजेंद्र जी, जरूर हम इस प्रकार के अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैं आपको कहा कि हमें लिमिटेशंस है. अभी बजट का क्या रोल है पूरे नैक एक्रेडिटेशन प्रोसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन का किस प्रकार का रोल बनता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे रखा जाए या डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाए, उन डॉक्यूमेंटेशन का क्लासिफिकेशन कैसे हो, या अभी जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ऑगमेंटेड करने के लिए उसकी कोड ऑफ कंडक्ट की क्या जरूरत है, और वो कोड ऑफ कंडक्ट हम कैसे तैयार करेंगे. ये सारे अनेक पहलू हैं जिस पर हम लोग एक एक सेशंस रख सकते हैं. और हमने इस बात को प्लान भी किया है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हम इन सारे चीजों को भी हम एक इस पूरे इस प्रोसेस में लेकर आएंगे और एक इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे. सो राजेंद्र जी, मुझे माफ कीजिएगा, आई वुड बी एबल टू कंपेयर बिटवीन आईएसओ एंड द नैक. हाँ, तो मैं कह रहा था कि इनकलकेटिंग वैल्यू सिस्टम अमॉन्ग स्टूडेंट्स. अर्थ क्या है कि हम शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन जब तक शिक्षा शिक्षा यानी कि जो एकेडमिक प्रोग्राम्स है उसको हम शिक्षा कहेंगे, लेकिन जब तक उसमें हम वैल्यू इनकलकेट नहीं करेंगे और उसमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं जोड़ेंगे, तो किसी भी शिक्षा में इतनी वैल्यू मूल्यता उसकी बढ़ेगी नहीं. तो ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज को हमें यदि उस लेवल तक जाना है, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हम जेनेरिक स्किल्स, एप्लीकेशन स्किल्स, लाइफ स्किल्स कैसे डेवलप कर पाएंगे हमारे बच्चों में, और इस तरह से हम किन साधनों का उपयोग करेंगे. जैसे आईसीटी एक साधन है जो उस पूरे लर्निंग प्रोसेस को एनरिच करती है, और जो ऑनलाइन प्रोग्राम सिस्टम्स है उसको कैसे एक्सेस करवाया जाए,
और हम इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। इसी आधार पर, यानी कि इन कोर वैल्यूज के आधार पर ये पूरी नैक की प्रोसेस पूरी जमी हुई है। और क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस जो लास्ट जो बेंचमार्किंग जिसकी मैंने बात की आपको, जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकता है कि अनेक प्रकार के अनेक इंस्टीट्यूट अनेक लेवल पर काम कर रहे होंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं एक हमारे ठाणा के ही आगे, यानी कि मुंबई ठाणा के ही आगे एक छोटे से एक गांव में जो एक कॉलेज है, उस कॉलेज को विजिट करने गया था वहाँ के संस्था चालक के रिक्वेस्ट के आधार पर, तो उनको कुछ सजेशन देने थे। अभी कई चीजें मेरे कान पर ऐसी आई कि वो आप लोग भी सुनकर हो सकता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो। एंड दिस इज हैपनिंग जस्ट क्लोजर टू बदलापुर, यानी कि बदलापुर के आगे कुछ 20 किलोमीटर के नजदीक वो कॉलेज है जहाँ पूरी तरह से सारी आदिवासी जमात रहती है। एंड फॉर देम इवन पेइंग 1000 रुपीज इज अ वेरी बिग टास्क। 1000 रुपया भी वो दे नहीं पाते हैं। यानी कि वो कुछ, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको बस से आने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए 10 से 12 किलोमीटर वो बच्चे चलते हुए आते हैं। तो इन सारी चीजों को यदि देखा जाए तो हर एक इंस्टीट्यूशन का जो रोल होता है वो अलग अलग होता है। अभी कुछ मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इंस्टीट्यूट है तो उनका रोल अलग है, और जो इन ऐसे देहाती इलाकों में या मोफसिल एरिया में जो इंस्टीट्यूट है इनके रोल अलग है। तो क्वालिटी को हम कैसे उसको असेस करेंगे, तो ये हमसे सबसे बड़ा, तो इसलिए उसका बेंचमार्किंग रखा गया। यानी कि बेंचमार्किंग, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपको बेंचमार्किंग क्या होती है, तो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर हम किसी भी इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उस इंस्टीट्यूशन को हम एक अलग है ना कटघरे में रखकर उसे हम क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशंस का दर्जा दे सकते हैं। अब यदि हम मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट है और कोई आदिवासी इलाकों में वो इंस्टीट्यूट है, उसको हम कंपेयर करेंगे और दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो शायद ये बड़ी नाइंसाफी होगी कि उस इंस्टीट्यूट को लेकर के यदि उस इंस्टीट्यूट को यदि हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया हो तो। So this is how you have to quest for excellence is based on the various benchmarks, various best practices within that institution, और वहाँ उस इंस्टीट्यूशंस की किस प्रकार की जो एटीट्यूड है प्रोग्रेस को रिलेटेड, उस सिस्टम को बदलने को लेकर, तो उसके आधार पर उसकी एक वैल्यूएशन होती है। तो मैंने जैसे कहा कि किसी नैक की एक कोर वैल्यूज है कि राष्ट्र के निर्माण में इंस्टीट्यूशन का किस प्रकार का सहभाग है, या वो इंस्टीट्यूट पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अपने बच्चों को किस तरह से खड़ा करता है, या उनके एकेडमिक प्रोग्राम्स के साथ में वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स कितने हैं, या आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स में कैसे ब्लेंड किया गया है, और विद्यार्थियों को कितने हद तक उसको है ना मदद हो रही है। और पूरी जो सिस्टम है, आईसीटी केवल टीचिंग और लर्निंग में ही नहीं बल्कि आईसीटी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भी आएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने भी एक सेशन की तैयारी की जिसमें आईसीटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक साथ में कैसे उसको हम बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं भी आपको बता दूं, how can make your institution or your administrative system as completely green। okay, उसे कैसे ग्रीन बने, एवर ग्रीन बनाए। ग्रीन यानी कि इसका अर्थ क्या है कि ग्रीन यानी कि हरा बनाना या कलर लगाना नहीं, ग्रीन यानी कि इसका अर्थ है कि आपके यहाँ पेपर की कम से कम है ना वहां पर उपयोग हो। अभी कैसे हर चीज के लिए हम है ना कागज पर लिखते रहते हैं, लेकिन इसका उपयोग कम से कम कैसे हो, डिजिटलाइजेशन कैसे सबसे ज्यादा हो, और डिजिटलाइजेशन थ्रू हम एक पूरे सिस्टम को कैसे खड़ा करें। ये तो बहुत बड़ी ही एक ये होगी, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस आज भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस भी दे आर डर्ज ऑफ फंड्स। बट लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कुछ काल के आगे, कुछ समय के बाद में इस बात को हम लोग समझ पाएंगे कि even maintaining environment is also our responsibility, and digitalization and making the entire process of teaching, learning, administration and all the supporting activities digital. So if that starts happening, I think we will be able to win over whatever our visions of towards the
मदर अर्थ। सो वो भी एक अपनी है। खैर, इन कोर वैल्यूज को लेकर सारा नैक बना हुआ है। और ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम की मैं अभी इस पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसे रिवाइज्ड असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क कहा जाता है, यानी कि RAAF, यानी कि राफ कह सकते हैं उसको आपको। तो इस सिस्टम को और आप पहले वाली जो सिस्टम थी उसमें फर्क क्या है? अब ये जो नई सिस्टम, उसमें 2017 में एक बार इसका नोटिफिकेशन आया, फिर 2018 में नोटिफिकेशन आया, और हाल ही में 2021 के जनवरी में भी इसका एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें ये प्रोसेस धीरे धीरे चेंज होती चली गई है। और इस सिस्टम में चेंज होने के कुछ मैं छोटे से मैं तो नटसेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? इसके पीछे फिलॉसफी है कि इसमें क्वांटिटेटिव डेटा के साथ में क्वालिटेटिव डेटा का एनालिसिस हो, और सिस्टम जनरेट करेगा इसका स्कोर। और ऑनलाइन असेसमेंट के जजमेंट के लिए 30% वेटेज रखा गया है। यदि मान लीजिए आपको 100 मार्क मिलने वाले हैं, तो 100 मार्क में से 30% मार्क पहले से ही बनकर आएंगे आपके, और वो हो गए ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा, यानी कि जो आप डेटा आप उनको पेश करेंगे, उन डेटा को इवेल्युएट करके वो मशीन जनरेट करेगी आपका स्कोर क्या रहेगा। और इन्होंने एक बड़ी बात क्या की कि अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग तरीके से उसको मापने की एक है ना, मेजर करने की एक है ना, उन्होंने फ्रेमवर्क क्रिएट किया, जिसमें यूनिवर्सिटीज को अलग से ये लोग असेस करेंगे, ऑटोनॉमस कॉलेजेस को असेस करेंगे, अफिलिएटेड कॉलेजेस को असेस अलग तरह से असेस करेंगे, और अभी तो नया जो आया है उसमें प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी असेस करने का अलग अलग तरीका है उसमें। और यही नहीं, बल्कि जो बच्चे उस कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, जिनको अलुमनाई कहेंगे, उन अलुमनाई को और द एग्जिस्टिंग बच्चों को एक साथ में एंगेज करके किस प्रकार से एक्टिविटीज हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर भी भर दिया गया है। तो पूरा डेटा वैलिडेशन सिस्टम में डिजिटल कराया गया है, और इसमें ऐसे प्रोविजंस रखे गए हैं कि सारी इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तरीके से रखी गई हो। तो ये है रिवाइज्ड असेसमेंट का सबसे बड़ा डिफरेंस। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने पहले से ही, ये क्वालिटी बेंचमार्क है जो 0 to 4 के स्केल में नापी जाएगी। इसमें अनेक मीटिंग्स होंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, इसके क्वालिटी इंडिकेटर्स बनाए जाएंगे, उन क्वालिटी इंडिकेटर्स के आधार पर ये असेसमेंट होगा, और उस कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटी का, या उस अफिलिएटेड कॉलेजेस का, या ऑटोनॉमस कॉलेजेस का एक बेंचमार्किंग डिजाइन किया जाएगा इस नई इस सोच के तहत। इसमें प्री क्वालिफायर भी रखा गया है। प्री क्वालिफायर यानी कि आप इंस्टीट्यूशन, आप असेसमेंट के लिए तभी उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब उसके 30% उसको मार्क्स सबसे पहले उस डेटा वैलिडेशन के थ्रू मिले। और ये भी रखा गया, यदि मान लीजिए यदि आपने 100 बच्चों का अपने डेटा उनको पहले प्रोवाइड किया, 100 बच्चों में ऐसा हुआ कि केवल 10 बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, बाकी 90 बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो आपका वो सबसे पहले उधर ही आपका फेलियर हो गया। तो इस तरह से अनेक लेवल पर भी नॉन टीचिंग का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके जिसके बिना कोई भी नैक की प्रोसेस हो नहीं सकती है। यही सोचकर हमने आपके सामने ये सारी इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश की है। छोटा सा हमारा एक हम्बल एफर्ट्स है, और हो सकता है आपकी मदद से हम लोग आगे इस पर अनेक विषयों पर हम लोग चर्चा भी करवाएंगे। तो जैसे मैंने आपको कह रहा था कि डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन करने के लिए नैक नहीं करेगी, एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करेगी, वो जो न्यूट्रल रहेगी, यानी कि वो कौन सी पार्टी है ना उस कॉलेज को पता है, नैक को पता है। नैक एक सिस्टम से जनरेट करके, उनके तो थर्ड पार्टी की जो लिस्ट रहेगी, उस सिस्टम जनरेट करके उसे वो डेटा चला जाएगा। Nobody will know that where your data has been sent, who is evaluating your data. So there are third parties who have been recognized to assess all kind of data that which you have presented to the NAC. तो उसको डेटा वैलिडेशन के लिए थर्ड पार्टी अपॉइंट किया गया। ये एक सबसे बड़ा फीचर है उस नैक का। और इसी फीचर्स को यदि हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, तो ये पूरी तरह से 100% आईसीटी बेस्ड प्रोसेस है। यानी कि आपका इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट का इंफॉर्मेशन हो, या आपका एसएसआर हो,
या आपका डेटा वैलिडेशन हो या प्री क्वालिफायर हो, ये सारी चीजें पूरी तरह से आईसीटी बेस्ड है, डिजिटलाइज है पूरा। आईसीटी यानी कि प्रिलिमिनरी स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक पूरा आईसीटी ही काम करेगा यहाँ पर। तो अभी इंस्टीट्यूशनल आईआईक्यूए जो जिसको कहते हैं, आप शुरू में जैसे आप पहले एलओआई कहा जाता था उसे, लेटर ऑफ इंटेंट, यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरे इंस्टीट्यूशन को नैक रिकॉग्नाइज करे और मेरी बेंचमार्किंग करे, ऐसे इस इंटेंशन को पहले एलओआई कहा जाता था। उस एलओआई को अभी इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट कहा जाता है। ओके, इसमें अनेक इंडिकेटर्स हैं जिनको हम एलिजिबिलिटी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो उन एलिजिबिलिटी इंडिकेटर्स के आधार पर आप क्वालिटी असेसमेंट के लिए तैयार हो कि नहीं, वहीं पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, वरना आपको उधर ही आपको उस इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन के आधार पर ही आपको रिजेक्ट किया जाता है। यानी कि आपकी जो 25,000 की फीस जब आप भरेंगे इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट के लिए, यदि उन मापदंडों में आपका इंस्टीट्यूशन नहीं बैठता है तो उसको नहीं किया जा सकता है, उसको क्वालिटी के लिए कंसिडर ही नहीं करेंगे। ऐसी घटना कई अनेक कॉलेजेस के साथ में हो गई। ऐसे कभी हम अलग अलग कॉलेजेस के जैसे इंटरेक्ट करते रहते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे कॉलेजेस मेरे संपर्क में आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने भले ही आईआईक्यूए उन्होंने सबमिट किया, लेकिन उनके इंस्टीट्यूशंस को वहीं पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो उनका क्या कहना क्या था कि वहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ पूरी तरह से नहीं है, वहाँ टीचिंग स्टाफ पूरी तरह से नहीं है, यदि है तो रिकॉग्नाइज नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। तो ये सारे आधार होते हैं, केवल क्वालिफिकेशन टीचर्स का नहीं पकड़ा जाता है, वहाँ पर जो नॉन टीचिंग का भी क्वालिफिकेशन इसमें कंसिडर किया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये दोनों बाजुओं को लेकर नैक चलती है, तो ये क्वालिटी इंडिकेटर्स के आधार पर ये तय होता है कि किसी इंस्टीट्यूशंस को हम एक्रेडिट करें कि नहीं करें। ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक है, इसमें किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। ओके, तो इसलिए कंप्लीटली ऑटोमेटिक सिस्टम है इसमें। तो ये इंडिकेटर्स क्या है, अलग अलग टाइप्स के इंडिकेटर जैसे आपको बता देंगे कि अलग अलग जो इंडिकेटर्स है, उन इंडिकेटर्स के आधार पर ये देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि हाउ दिस एंटायर फ्रेमवर्क इज वर्किंग और व्हाट इज दिस आरएम। तो पहले पूरी प्रोसेस को जानने से पहले कि किस तरह से नैक की शुरुआत होगी और नैक किन आधारों पर, किन मुद्दों पर वो, या किन स्टेप्स के द्वारा आप नैक को अप्लाई करेंगे, इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ क्वालिटी इंडिकेटर्स है, फ्रेमवर्क्स है, जिसको 7 इसमें कहा गया है। जैसे पहला वाला है जो करिकुलर एस्पेक्ट्स, दूसरा वाला है टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन एस्पेक्ट, रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये 7 क्राइटेरिया है, इनको क्वालिटी इंडिकेटर्स कहा जाता है। और ये क्वालिटी इंडिकेटर्स का एक अपना अपना एक ये है, जैसे आप कहेंगे उसमें की इंडिकेटर्स, ये तो क्राइटेरियाज हो गए, ये 7 क्राइटेरियाज हो गए, लेकिन इसमें भी कई अनेक की इंडिकेटर्स है जो हर एक है ना इसमें। जैसे अफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करेंगे तो 7 क्राइटेरिया के साथ में 32 की इंडिकेटर्स है। वो की इंडिकेटर्स क्या, मैं आपको भले ही डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन छोटी हल्की सी झलक हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्वालिटेटिव मैट्रिक्स और क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स कहा जाता है उसको, यानी कि क्वालिटेटिव जो क्वालिटी के तौर पर, क्वांटिटेटिव यानी कि डेटा के तौर पर। So there are total 41 qualitative metrics overall in 7 criteria and 80 quantitative matrices in the entire in this one in affiliated colleges. But लेकिन यही चीज बदलती है, autonomous colleges के लिए qualitative metrics 38 होते हैं और quantitative metrics 98 होते हैं। तो इस तरह से देखोगे आप affiliated colleges को 121 और टोटल ये आप कहेंगे मैट्रिक्स है, और ऑटोनोमस के लिए 136 है और यूनिवर्सिटीज के लिए 137 है। तो ऑटोनोमस का और यूनिवर्सिटी के करीबन ये इंडिकेटर सेम है। तो उसके अलग अलग अप्रोच, जैसे मैंने आपको कहा कि
ये अलग अलग क्वालिटी इंडिकेटर्स है, इन इंडिकेटर्स के आधार पर सारी नैक की प्रोसेस होती है। ओके, तो या चंद्रकला जी, आपका जो सवाल है, सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर हैविंग द एड हॉक बेसिस, so in these ad hoc basis is considered. No, ad hoc basic staff is not considered. See, there is a minimum requirement to run a particular institution. यदि मैं कहूं कि मैं इंस्टीट्यूशन मेरा अपना है और मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट तौर पर कुछ ना मैं अपॉइंट करूं और कहूं कि नहीं इंस्टीट्यूशन मेरा रिकॉग्नाइज कीजिए, ऐसा नहीं होता है। even ad hoc is not considered. You should have a full-time working, staff. I say staff that includes teaching as well as the non-teaching. ये सबसे बड़ा पैरामीटर है। जैसे मैंने आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस मैंने सुने हैं या उनसे मुलाकात हो गई है कि उनका जो IIQA पढ़ने के बाद ही नैक ने उन्हें पूरी तरह से मना कर दिया कि 1 साल तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये सारे क्वालिटी इंडिकेटर्स आप पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला था कि फुल टाइम टीचर्स नहीं है आपके पास, फुल टाइम नॉन टीचिंग नहीं है, तो ये एक आधार होता है, तो इसीलिए एड हॉक नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, तो जिस पहले असेसमेंट की मेथोडोलॉजी को यदि हम देखेंगे तो उसको जैसे मैंने कहा कि 4 स्टेप्स में असेसमेंट की मेथोडोलॉजी है। सबसे पहले ये जो है कि प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, जैसे मैंने कहा कि 7 क्राइटेरिया है, उसको असेस करेंगे। ठीक है, यानी कि उसके पहले जो है IIQA को असेस करेंगे। फिर आपकी इंस्टीट्यूशंस की पूरी रिपोर्ट बनेगी जिसको कहा जाएगा सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, यानी कि SSR कहा जाएगा। पहले उसे अलग नाम था, RAR कहा जाता था उसको सबसे पहले, अभी वो SSR हो गया है। और उसके बाद में जब आपके इंफॉर्मेशन की ये सारी प्रोसेस होने के बाद में आपके इंस्टीट्यूशन को विजिट करेगी नैक की पीयर टीम। लेकिन नैक के पीयर टीम आने से पहले 70% आपका डेटा एनालिसिस होकर आपका 70% स्कोर तभी तैयार रहेगा। सिर्फ 30% के स्कोर को 30%, am I audible, please? I think Sushil ji is saying that I'm not audible. Can somebody confirm that, please? Am I audible? Sir, you are audible. Yeah, thank you. Sir, you are audible. Yeah, thank you so much for that. Well, तो मैं कह रहा था आपको कि ये जो दोस्त जैसे अलग तीसरी जो ये है, यानी कि 70% का आपकी मार्किंग सबसे पहले होगी और बाकी केवल बची हुई 30% की मार्किंग के लिए पीयर टीम केवल उसको कोरॉबरेट करने के लिए, यानी कि उस जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं वो डॉक्यूमेंटेशन वो उसके कनेक्टेड है कि नहीं इस चीज को, या उसको आप ये कह सकते हैं कि वो यदि सही है क्या नहीं, वो सिर्फ देखने के लिए आपके पास पीयर टीम आएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, पहले कैसा था कि पीयर टीम आती थी तो कॉलेज को पता चलता था, कॉलेज उनकी रहने की खाने की सब सुविधाएं वो सब सारी करता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आपको करीबन 3 लाख तक अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अलग अलग अमाउंट है, तो एग्जैक्ट अमाउंट भले ही नहीं बता पाऊं, लेकिन अगर अराउंड 3.5 लाख रुपीज इज बीइंग चार्ज फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन, सो दैट फॉर उनके अकोमोडेशन के लिए, उनको आने जाने के लिए या सारे खर्चा के लिए इंस्टीट्यूशन इज चार्ज फॉर इट। तो उसके लिए आप देखोगे तो ये पूरी सिस्टम, और उनको रहने के लिए, उनको आने के लिए, उनके पूरे सब कुछ है ना, वो सिर्फ नैक करेगी, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रखेगा उनको। पहले कैसे होता था, चलो हमारे असेसमेंट के लिए लोग आए तो उनको बड़े से बड़े होटल में रखो, अच्छा खासा खाना खिला दो उन्हें और खाना खिलाकर उनको थोड़ा खुश करो, इस प्रकार की धारणाएं होती थी। तो इन सारी धारणाओं को उन्होंने पूरी तरह से निकाल दिया है। अब जो कुछ भी असेसमेंट होगा उनकी अरेंजमेंट रहेगी, उनका ट्रांसपोर्ट रहेगा, या उनका कॉलेज तक आपके पहुंचने के लिए उनका जो भी सुविधाएं उन्हें लगती है वो सुविधाएं नैक देगी। आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ फीस भरकर अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखेंगे, इतना ही काम करेंगे। तो इसके बाद में जो फाइनल उसका PTR रिपोर्ट आने के बाद, ये PTR रिपोर्ट इसको सबमिट होगा, तब वो जो नैक की जो ये कमिटी है वो बैठकर उसे डिसाइड करेगी कि इनको क्या क्या ग्रेड देना चाहिए और किस प्रकार से इनको ये होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा पूरी तरह से असेसमेंट के लिए तो इनकी क्राइटेरिया, जैसे 7 क्राइटेरिया है, इन 7 क्राइटेरिया को 1000 के पॉइंट स्केल पर उसे गिना जाएगा।
आप देख सकते हो इस दिए गए इस पूरे इस स्लाइड में मैंने जो नैक द्वारा दिए गए मैनुअल में जो भी है तो उसे मैं यहीं पर छापा है। तो उसमें आप करिकुलर एस्पेक्ट से लेकर हेल्दी प्रैक्टिसेस तक देखोगे तो इन सारे क्राइटेरियाज में सारे पॉइंट्स, जैसे एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए करिकुलर एस्पेक्ट्स के लिए 100 पॉइंट्स, टीचिंग लर्निंग के लिए 400 पॉइंट्स, रिसर्च कंसल्टेंसी के लिए 50 पॉइंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 150, इस तरह से 1000 का स्कोर हो जाता है। तो यही सारे, इसको स्कोर तो 1000 है लेकिन स्कोर थोड़ा सा आगे पीछे है। जैसे ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन के लिए 300 मार्क है तो एफिलिएटेड कॉलेज को 400 मार्क है। और करिकुलर एस्पेक्ट्स में यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस कॉलेजेस दोनों को सेम है। तो इस तरह के मार्किंग सिस्टम है, ये जो मार्किंग उसको स्केल है, उस स्केल के आधार पर ये सारा तय किया जाएगा। तो ये ग्रेडिंग की सिस्टम है जो A++ से लेकर A+ या C++, तो इसको ज्यादा मैं आपको इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे क्राइटेरिया पर थोड़ा सा चर्चा करनी है आपके साथ में। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, जो लास्ट ग्रेड है C ग्रेड है और उसके आगे वाला ग्रेड अभी रखा नहीं है, D ग्रेड रखा ही नहीं है। 55 to 60 C ग्रेड, D ग्रेड यानी कि आपको यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो ये इस तरह की ग्रेडिंग सिस्टम है आपकी A++, A+, A, B++, B+, C++, C, इस तरह से। तो लास्ट जो एक्रेडिटेड किसी भी संस्था का आप ग्रेड देखोगे, यदि मान लीजिए कोई संस्था मिनिमम उसके पास सारी चीजें हैं तो उसको 55 to 60 मिलने के लिए C ग्रेड उसको इस तरह से रिकॉग्नाइज किया। इवन C ग्रेड इज आल्सो क्वालिफाइड वन। So that depends on the how much institutional score and upper limit for each one is being mentioned here. Okay, तो ये अलग अलग, जैसे अभी क्राइटेरिया 1 की हम थोड़ी सी बात करेंगे और क्राइटेरिया 1 में क्या है और वो क्या इसमें सबसे पहले इंडिकेटर्स हैं। एक बात ध्यान में रखिए, किसी भी संस्था हो यानी कि एनी इंस्टीट्यूशन यू टेक अप, ओके, उनका एक अपना कमिटमेंट है किस चीज के लिए, कि उसको पढ़ाने का, यानी कि करिकुलर यानी कि इम्पार्टिंग द नॉलेज, ओके, मेन उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या असेसमेंट हो या यानी कि भले दोनों चीज अलग अलग फंक्शंस रहेंगे, कंस्टिट्यूशन अलग अलग कॉलेज के फंक्शंस रहेंगे। जैसे अभी सब्जेक्ट है ना डिसाइड, यानी कि करिकुलर यानी कि आप कहेंगे सिलेबस डिजाइन करना है तो सिलेबस डिजाइन कौन करेगी, यूनिवर्सिटी करेगी। ऑटोनोमस कॉलेज है तो उनकी खुद की है ना BOS रहेगी, ओके, तो इस तरह से। लेकिन एफिलिएटेड कॉलेजेस जो होती है वो यूनिवर्सिटी के दिए गए सिलेबस पे काम करेगी, तो उनको वहां पर किसी प्रकार के मार्क्स नहीं रखे गए आप देखोगे तो। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, यानी कि हर तरह से उसे असेसमेंट किया गया है, लेकिन उस दिए गए करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है, वो आपको इस पे आपको कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में 20 मार्क रखा गया है यूजी और पीजी के लिए। एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसका अर्थ होता है कि अलग अलग प्रकार से हम उस एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपका CBGS सिस्टम है या उसमें ग्रेड चॉइसेस है या चॉइस है कुछ दिया गया है, इस तरह से आपने कुछ कंसीडर किया है क्या। यानी कि एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ क्या होता है, there should be a freedom to choose for the various courses, okay, एक ऐसे मोबिलिटी हो, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी या वर्टिकल मोबिलिटी, एक स्तर से लेकर दूसरे स्तर तक। जैसे हो सकता है कि किसी बच्चे को ये होगा कि मैं 2 म्यूजिक के विषय भी लेना चाहता हूँ मेरी कन्वेंशनल डिग्री के साथ में, whether he is having that kind of an opportunity, the university is considering such kinds of choice based grading system for the students। तो इस पर एक एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी डिसाइड कीजिए। हो सकता है कि उसको एक सब्जेक्ट पसंद नहीं है लेकिन उसके जगह पे कुछ और चाहता है वो सब्जेक्ट, इसलिए अभी देखिए एनसीसी से सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स से सब्जेक्ट्स, ऐसे अनेक सब्जेक्ट्स हैं जो एफसी के आप रिप्लेसमेंट में दे सकते हैं, ओके। या ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कितना है सब्जेक्ट का, यानी कि एक विषय दूसरे विषय, केवल विषय के एक ही पढ़ाकर ऐसे नहीं होगा, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट इज नॉट एलियन इटसेल्फ। See, every subject has got one or the other way is connected to other subject also। तो उसकी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं लिटरेचर भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या लिटरेचर अपने आप में एलियन है? नहीं, लिटरेचर क्या है, वो उस समाज का प्रतिबिंब है,
तो यानी कि वो सोशल साइंसेस आएंगे, साइकोलॉजी आएगी, साइंस आएगा, एनवायरनमेंट आएगा, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ये लिटरेचर है। इसका अर्थ क्या हो गया, वो इंटरडिसिप्लिनरी बन गया। या कुछ ऑप्शंस दे पा रहे हैं क्या इन सब चीजों को हम स्टडी करने के लिए, वो एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये उस तरह से ये सिस्टम काम करेगी और ये पैरामीटर्स डिसाइड किए जाएंगे। जैसे लास्ट वाले से करिकुलम एनरिचमेंट कहा जाएगा। अभी करिकुलम एनरिचमेंट क्या है कि हम जो भी एग्जिस्टिंग जो करिकुलम है उसके साथ में किसी प्रकार के अन्य कोई एक्टिविटीज हम ऐड कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे हम स्टूडेंट को सेंसिटाइज करते हैं कि नहीं, कुछ क्रॉस कटिंग इश्यूज जो होते हैं, जो करंट नेशनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, जेंडर से संबंधित हो, एनवायरनमेंट से संबंधित हो, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी से संबंधित हो, ये ह्यूमन वैल्यूज से संबंधित हो, या कोई डाइवर्जेंट कॉम्पिटेंसीज के आधार पर हो, यानी कि अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटेंसीज अर्थात उसकी कैपेसिटीज के आधार पर हो। तो इस प्रकार की आपकी प्रोग्रेसिव सोच है कि नहीं, वो करिकुलम एनरिचमेंट के थ्रू वो लोग देखेंगे। और फीडबैक सिस्टम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीडबैक सिस्टम हर एक क्राइटेरिया में फीडबैक सिस्टम है। इवन मैं कहता हूं कि केवल टीचर्स के ही ऊपर फीडबैक सिस्टम नहीं, बल्कि नॉन टीचिंग यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका किस तरह से है, आप बच्चों को किस तरह से पेश आते हैं, और उन स्टूडेंट को आप फैसिलिटी कैसे क्रिएट करते हो, और कोई भी ग्रीवेंसेस उस स्टूडेंट का आया तो उस ग्रीवेंसेस को आप कितना जल्दी उसको आप उसे एड्रेस करते हो, या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट्स है तो उसको आप कैसे सुधार सकते हो, या आपके जो एग्जिस्टिंग यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे हैं, यानी कि वो एनर्जी रिच कैसे है। उदाहरण के तौर पर आप उसको क्या कर उसको ऑडिट, ग्रीन ऑडिट कर सकते हैं, यानी कि कितने कम से कम पंखे चल रहे हैं, या समझो कितने कम से कम ट्यूब में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। या हो सकता है कि नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने कुछ सोलार प्लेट्स लगाए हुए हैं क्या, या आप है ना आपके जो बिल्डिंग के ऊपर गिरता हुआ पानी है उस पानी को आपने कहीं जमा कर कर उस रीयूज करने की ऐसा कोई आपने एक सिस्टम बनाई है क्या। ऐसे अनेक चीजों पर वो फीडबैक होगा। और वो फीडबैक भी जैसे आपका, मुझे लगता है कि आपके कॉलेजेस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट होता रहेगा, लाइब्रेरी ऑडिट होता रहेगा, एकेडमिक ऑडिट होता रहेगा, ग्रीन ऑडिट होता रहेगा, फिनेंशियल ऑडिट होता रहेगा। तो इसके थ्रू जो भी पॉइंट्स आपके सामने आते हैं उस पर आप किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं, स्ट्रेटेजीज कैसे बनाते हैं, उसे इम्प्रूव करने के लिए आपका प्लानिंग क्या होता है। तो इन सारी चीजों के आधार पर आपका मूल्यमापन होगा। दैट इज द important part of this entire system. So feedback is very important. तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि फीडबैक केवल टीचर के लिए नहीं होता है, हर चीज के लिए फीडबैक होगा, हर नॉन टीचिंग के टीचर के ऊपर भी फीडबैक होगा। तो फीडबैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर एंटायर NAAC क्राइटेरिया दैट यू आर गोइंग टू हैव इट। तो इस तरह से 100 मार्क का है ये टीचिंग, लर्निंग और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया नंबर 2 है। ओके, अभी इसमें ये तो पूरा डेटा है, इसमें स्टूडेंट एनरोलमेंट, उनका प्रोफाइल, आप स्टूडेंट के अलग अलग डाइवर्स स्टूडेंट को कैसे आप ये करते हो, यानी कि आप उनको केटर करते हो। मेनली ये क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टीचिंग, लर्निंग और इवैल्यूएशन जो क्राइटेरिया है ये कई चीजों पर फोकस करता है। एक सबसे पहले क्या है, ये फोकस करता है कि आपकी टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज कौन सी है। आप ग्रुप डिस्कशन यूज करते हैं, डिबेट्स है, प्रोजेक्ट्स है, प्रेजेंटेशंस है, एक्सपेरिमेंट्स है, प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, या आईसीटी का उपयोग हो उसमें। और इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास एडिक्वेट स्पेस, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपका एडिक्वेट नॉन टीचिंग यानी कि सपोर्टिंग स्टाफ है आपका, और उसके लिए कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम है। प्रोफेशनल चीजों को डेवलप करने के लिए आपकी पूरी फैकल्टी और उसके साथ में नॉन टीचर्स, ये दोनों भी एफिशिएंट है, वो टेक्निकली और कन्वेंशनली वो चीजें हैंडल कर सकते हैं। इन चीजों पर ये पूरा क्राइटेरिया फोकस करता है। इसलिए आप देखेंगे इसमें 7 की इंडिकेटर्स हैं और 7 की इंडिकेटर्स की वैल्यूज है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है। यूनिवर्सिटीज में अलग है, ऑटोनोमस में अलग है, और कॉन्स्टिट्यूएंट और अफिलिएटेड कॉलेजेस में उसका इवैल्यूएशन अलग है। तो ये आप है ना जानकर चलेंगे इसमें।
जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट जो है आपका स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बच्चा at the end of the entire 3 years how much satisfied he is by joining to your college. अलग अलग चीजों पर उसका मापदंड रहेगा, वो भी हम थोड़ा सा उसको ज्यादा अभी ये न करते हुए, but what I mean to say here is it's a very important for us to understand these criteria. Okay, तो मैं आपका थोड़ा लास्ट का मैं आपको उसके बारे में बोलता हूँ, बाकी तो आपको शायद ये सारी चीजें पता है। और ये है आपका स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे। तो ये क्या होता है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे? यानी कि टीचर और नॉन टीचर, यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग जो आपका फैकल्टीज है, वो हर तरह से बच्चों को लर्निंग प्रोसेस में उसको फैसिलिटेट करते रहते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इफेक्टिवली और मॉडरेटली, व्हाटएवर यू से, एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज डूइंग दैट। सो ये सेटिस्फैक्शन लेवल ये डिसाइड करेगा कि इन सारी चीजों के दरमियान उस बच्चे का क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे फील करता है, वो कंफर्टेबल फील करता है, एनरिच्ड फील करता है, उसे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेट होते हैं उसको, और उसको लर्निंग सिचुएशंस प्रोवाइड किए गए हैं, और उसके विचार को सही मायनों में वहाँ इनकॉर्पोरेट किया गया है, उसके फीडबैक को इनकॉर्पोरेट किया गया है। ऐसे अलग अलग तरीके से स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे होता है। अभी उसको यदि स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे के ऊपर हम पूरा एक घंटे का लेक्चर ले सकते हैं, बट लेकिन मैं आपको नटसेल में बता रहा हूँ कि इसमें भी आपका रोल रहेगा। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई सेड, you see, the job of the teacher and the non-teacher is the same, and everywhere you are the co-perceiver. So without your support there is no assessment in the NAAC accreditation process. So therefore it is very important for us to understand that teaching and non-teaching, teacher and non-teacher will go hand in hand. So instead of saying non-teacher, I say supporting staff. So supporting staff and the staff will go hand in hand. Only then the evaluation process is possible in any institution. खैर, यहाँ पर जो क्राइटेरिया 3 है, इस पर मैं आपको ज्यादा मैं आपसे नहीं लूंगा, लेकिन एक्सटेंशन एक्टिविटीज में है जो आपका मेजर रोल हो सकता है। यानी कि ये पूरा जो रिसर्च एंड इनोवेशन का जो क्राइटेरिया है, इस है ना जो इस तरह का जो ये है रिसर्च का है, आप देखेंगे इसमें भी 7 चीजें हैं जिस पर हम ये कह सकते हैं। प्रतीक्षा जी, thanks for your response, because you feel that supporting staff is, of course, we all must feel that it's not possible for an assessment of any institution unless both the staff join hand in hand for the institutional distinctiveness as well as the institutional quality. So a quality is not built up by a lone person, as only principal can't build a quality, nor even the management. Management may be wishing to influx lots of fund, but quality cannot be created. Quality must always be a convention. Quality must be always be a tradition, and quality must always be in its in a practice. So जब तक और ये क्या है, सारे all stakeholders will be hand in hand for the quality enrichment. So ये सारे stakeholders को लेकर ही किसी institution की ये जो मजबूती होती है, otherwise institution cannot be recognized. So thanks for that, Lakshman ji and Sunil ji also for giving your opinion. Anyway, so मैं कह रहा था कि research, innovations और extension जो activities होती है, उसमें जो प्रमोशन ऑफ रिसर्च हो या रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो या इनोवेटिव इकोसिस्टम हो, पब्लिकेशंस हो, कंसल्टेंसी हो, ये जो रिसर्च तो क्राइटेरिया नंबर 3 है, वो थोड़ा सा ज्यादातर ये टीचर से संबंधित है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आपका रोल हो सकता है, एकेडमिक रिसोर्सेस हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, जिसमें टाइमली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी लेना पड़ता है जरूरी किसी समय पर, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पर, ताकि रिसोर्सेस जल्दी से जनरेट हो जाए। वरना क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं किसी गवर्नमेंट संस्थाओं में आप कोई काम करने जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन से एक जगह से दूसरी जगह फाइल हिलती ही नहीं है। तो इस तरह का सिस्टम रहेगा तो आप रिसोर्स मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो
Administration has a very major role to play in this case also. तो इसी के साथ में क्या होता है कि कोई भी स्टाफ, जैसे अभी देखिए मान लीजिए किसी आपके स्टाफ ने कोई प्रोजेक्ट लाया बाहर से, लेकिन उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, उसका प्रोजेक्ट का यूटिलाइजेशन है, उसकी यूटिलाइजेशन बिल्स है, या उस प्रोजेक्ट के जो पूरी तरह से बिलिंग सिस्टम है, वो सारी सिस्टम कौन जनरेट करेगा? The non-teacher, that is a non-teaching staff, will create all these kinds of things. क्योंकि टीचर को भले ही उसका नॉलेज ना हो, but they need it and they should have it like that. So they should have, right from an approaching to the funding agency, maybe funding agency को approach करने का काम भले ही ना टीचर का हो, लेकिन उसको यूटिलाइजेशन करने का काम किसका होगा? यूटिलाइज कैसे किया जाए, उसको कैसे डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, और उसको ऑडिट कैसे किया जाए. सो दिस विल बी डन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ओके, द सपोर्टिंग स्टाफ जिसको हम लोग कहेंगे. सो भले ही उस सिस्टम में, सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू राजेश्वरी जी फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स. सो नाउ वी टॉक अबाउट एन इनोवेशन इकोसिस्टम, यानी कि इनोवेशन इकोसिस्टम जिसको यानी कि कैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स है, और आपके वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल प्रोजेक्ट्स है, नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस है, वो सारी इनोवेशन इकोसिस्टम के अंदर आएंगे. कंसल्टेंसीज है, जैसे आपके कम्युनिटी इश्यूज है, जेंडर डिस्पैरिटीज के ऊपर आपके क्या एक्टिविटीज रही है, सोशल इनइक्वालिटीज को मिटाने के लिए क्या एक्टिविटीज रही है, इनकलकेटिंग वैल्यूज के लिए आपकी एक्टिविटीज क्या रही है, आपका कमिटमेंट क्या है सोसाइटी की तरफ. तो इन सारी चीजों को देखा जाएगा इस पूरे क्राइटेरिया के अंदर. और इसीलिए यहाँ पर जैसे अलग अलग संस्थाओं के साथ में हम कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं, उनकी कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, और उनका जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है उनके साथ में बनाने का MOU है, और उन संस्थाओं से हमारा कम्युनिकेशन का जो पार्ट है, दिस इज अगेन द नॉन टीचिंग स्टाफ प्ले अ मेजर रोल इन इट. सो maybe it could be a collaboration with reference to training, student exchange, faculty exchange, research and resource sharing, or research and resource mobilization, or a fund sharing basis also. So ये MOU जो बनेगा, MOU के बाद में जो भी उसका communication system तो तैयार होगा, that's it. Here the supporting staff will play a major role in it. तो इस तरह से ये criteria 3 है. और उसके बाद में क्राइटेरिया 4 जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज जिसको कहेंगे हम लोग, इस यानी कि इस देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज में हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन सी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है. इसमें देखिए एक तो सबसे पहले है जो आपका एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को कीप अप करने के लिए, या उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पेस अप करने के लिए, पेस अप यानी कि उसको बढ़ाने के लिए, या उसकी सपोर्टिंग फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए, या उसका बजटिंग हो, तो सारी चीजें जो फिजिकल फैसिलिटीज के अंदर आती है. तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे लाइब्रेरी और लर्निंग रिसोर्सेस है. एंड आई थिंक हियर द एंटायर रोल इज फ्रॉम द नॉन टीचिंग स्टाफ इटसेल्फ, right from the maintenance of the books, journals, learning materials, technology aided learning, information, knowledge, skills, okay, the utility of the e-journals, and creating the entire code of conduct for the utilization of all these learning resources. ये सारी चीजों को जो होती है, this is how here your role here seems to be very big one. So ये एक चीज है लाइब्रेरी और लर्निंग रिसोर्सेज के लिए. श्रेया जी, thank you for your nice comment on this. Of course, Shreya ji, we have already planned to have one session on the documentation and the maintenance of your department. At least for a documentation, we will be taking up one more session by tomorrow. So Shreya ji, I'll assure you that if not this 7 days workshops, but this give and take relationship will continue near future also, क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए कि ये सारा हम प्रोसेस कंटिन्यू रखें और आपके साथ में कदम से कदम मिलाते चले, ताकि क्या है ये लर्निंग है ना एकदम इजी हो, एक्सेसिबल हो और सबको फ्री हो. तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू श्रेया जी फॉर योर नाइस कमेंट फॉर दैट. सुशील जी, थैंक यू फॉर दैट.
सो IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप देखेंगे उसमें एडिक्वेट टेक्नोलॉजी है, ICT फैसिलिटीज है, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है। ओके, सो जैसे ये सारे जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज है सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आती है। यानी कि आपके इस चीज को मेंटेनेंस ऑफ, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ योर स्ट्रक्चर हो, जैसे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए, उसका पीरियोडिकल रिप्लेसमेंट होने चाहिए। ओके, और उसके साथ में रेगुलर उस इंफ्रास्ट्रक्चर का अपकीप होना चाहिए। इफेक्टिवनेस उस, यानी कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज नहीं होता है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे कर पाए, तो उसकी एक आपकी एक मैकेनिज्म क्रिएट करनी होगी। तो ये मैकेनिज्म का भी काम इज योर्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट हियर इज योर वेरी मेजर रोल। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? हम बड़े बिल्डिंग्स बनाकर रखे, बड़े बड़े लैब्स बनाकर रखे हैं, लेकिन उस चीज का उपयोग ही नहीं होता है। बड़ी लाइब्रेरी रखी है लेकिन कुछ फुटफॉल्स ही नहीं है आपकी लाइब्रेरी में, तो उसका मतलब क्या है? यानी कि हम कहीं कम पढ़ रहे हैं कि हम हमारे बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करने के लिए टू रीच द लाइब्रेरी एंड टू स्टडी एंड टू टेक द बुक्स एंड रीड द बुक्स एंड वी आर फैसिलिटेटिंग देम। जैसे अभी कई जगह पर ऐसे हमें थोड़ा सा सुनने में आता है कि कुछ स्टाफ जो होता है थोड़ा सा एरोगेंट होता है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन इस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जब तक हमारे कॉलेज में स्टूडेंट नहीं है तो तब हमारे कॉलेज का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए हमारी सेवाएं जो भी है वो उन बच्चों के लिए हैं जो हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। तो उनको किस तरह से हम लोग सेवा दे पाए इस पर हमें सोचना चाहिए। उनको जैसे हम तो कमर्शियल के तौर पर नहीं कहेंगे, वो हमारे लिए ग्राहक नहीं है बल्कि हमारे लिए, हाँ आजकल के यदि कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में कहोगे तो स्टूडेंट भी ग्राहक है। कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में आप इस तरह से बात करेंगे तो कहेंगे कि हाँ जरूर वो ग्राहक है, क्योंकि ग्राहक खुश नहीं है तो फिर आपका दुकान ही नहीं चलेगी। सिंपल वे में जिसे मैं आपको कहता हूँ तो, लेकिन भले ही मैं ये न कहते हुए कि थोड़ा सा मैं उसे ये कहूँ कि जहाँ विद्यार्थी है तो उस कॉलेज को शोभा है, और विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षकेतर ये चारों साथ, तीनों साथ में मिलकर उस कोई भी है ना इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं। मैनेजमेंट है वो फैसिलिटेट करेगा, गवर्निंग करेगा, वो पॉलिसीज डिसाइड करेगा, और वो भी आपके कंसल्टेशन के साथ में। तो इस तरह का एक मेंटेनेंस होना चाहिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करना चाहिए। तो मेंटल कैंपस का इफेक्टिव मैकेनिज्म जो है उस पूरे इसको बनाने के लिए, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इफेक्टिवली यूज करने के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो ये रहा पूरा 100 मार्क्स का। उसके बाद में आपका रहेगा स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, यानी कि इसमें 4 इंडिकेटर्स हैं, ये बड़े ही इजियर है। स्टूडेंट सपोर्ट, यानी कि स्टूडेंट सपोर्ट का अर्थ क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि व्हाट इज स्टूडेंट सपोर्ट। यानी कि आपके यहाँ कहीं गाइडेंस सेल्स होंगे, ओके, इंस्टीट्यूशंस में आपके होंगे, जैसे आपके यहाँ बच्चों का ग्रीवेंसेस सेल है, या गाइडेंस सेल किया गया है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक सेल बनाया गया है, या प्लेसमेंट सेल है आपके यहाँ पर, या स्टूडेंट्स के वेलफेयर मेजर्स को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट वेलफेयर मेजर का एक सेल है। तो इस तरह से ये आप कैसे कर पाते हैं स्टूडेंट को सपोर्ट। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर अभी आपको ऐसे हो सकता है कि भले ही इसमें आपका रोल थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ब्रिज कोर्सेस है उसमें हाफ द रोल आपका भी होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ब्रिज कोर्सेस या वैल्यू एडेड कोर्सेस, यानी ब्रिज कोर्सेस और वैल्यू एडेड स्टूडेंट सपोर्ट में आते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। छोटे सी चीज में हो सकता है कि किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स लिया हो और उसे लगता है कि उसे कुछ बेसिक्स है वो क्लियर नहीं कर पाया है, उसे बेसिक उसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ बच्चे हैं। तो उन बच्चों के लिए हमने जो उसको जो नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं, उस बेसिक नॉलेज को देने के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स डिजाइन किया टीचर्स ने। ओके, उसकी एनरोलमेंट की, उसके उसके ना मतलब उसके रिकॉर्ड्स को, अटेंडेंस को रिकॉर्ड रखने के लिए, उसका फीडबैक रिकॉर्ड करने के लिए। सो हियर योर रोल कम्स। ओके, लेकिन ये क्या हो गया, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ब्रिज कोर्सेस हो, वैल्यू एडेड कोर्सेस हो, या कोई अनेक प्रकार के सेल्स हो,
तो स्टूडेंट सपोर्ट में इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ओके, और स्टूडेंट की अलग अलग एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स भी है ना, वो क्या करता है, स्टूडेंट प्रोग्रेशन जो आपका है अलग अलग तरह से, यानी कि स्टूडेंट प्रोग्रेशन का एक और एक चीज वहां पर जो कही गई, मैं आपको बताता हूँ सिंपल चीजों में स्टूडेंट प्रोग्रेशन क्या होता है। स्टूडेंट प्रोग्रेशन यानी कि हो सकता है कुछ बच्चे पुअर अटेंशन वाले हो सकता है कुछ बच्चे जैसे उनको इंग्लिश कम आती हो, इंग्लिश बोल नहीं पाते हो, तो उन लोगों के लिए क्या हमने कोई रेमेडियल मेजर्स ले रहे हैं क्या हम लोग, या कुछ ऐसी एक ऑप्टिमम हमारी एक प्रैक्टिस बनाया है क्या उन बच्चों को प्रोग्रेस करवाने के लिए हम एक सपोर्टिंग सिस्टम खड़ा करें, जैसे रेमेडियल लेक्चर्स इज वन ऑफ द मेजर। ठीक है, और उसके साथ में हो सकता है कोई बच्चा अच्छा हो और उसको वर्टिकली मूव करना हो कुछ अलग पढ़ने के लिए, ऐसा हमने कोई सिस्टम क्रिएट किया है क्या। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट अ वीकर सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट, but there may be the students that they are very highly qualified or maybe highly talented, and such kinds of a student must also get an opportunity to scale higher। तो ऐसा हमने कुछ सिस्टम क्रिएट किया है क्या, और ये सिस्टम क्रिएट करने का अलग अलग स्किल्स के ऊपर हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग टीचर्स अपने तरीके से उस चीज को बढ़ावा देने के लिए वो क्या सपोर्ट सिस्टम खड़ा करते हैं, इसके ऊपर एक देखा जाता है। और रहा आपका नेक्स्ट जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन का है, उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन यानी कि क्या हो, देखिए उसमें 4 चीजें मुझे ध्यान में आती है। सबसे पहले एक तो हमारी इंक्लूसिव प्रैक्टिस सोशल जस्टिस की, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स, यानी कि उस पूरी सिस्टम में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ में हमारे संबंध कैसे हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो आपका, और किसी भी इसके लिए एक गुड सिटीजनशिप्स के क्वालिटीज हम लोग इनकलकेट कर रहे हो उन बच्चों में, और इसके साथ में सोशल कल्चरल और लीजर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। ये होता है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन रिलेटेड, यानी कि स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो लास्ट जो है वो आपका है अलुमनाई एंगेजमेंट। अलुमनाई एंगेजमेंट 2 तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एक तो उनका एक एसोसिएशन बनाकर, ओके, और आपके यहाँ जो सारे एकेडमिक प्रोग्राम चलते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए उनका पार्टिसिपेशन फिनेंशियल हो या नॉन फिनेंशियल हो सकता है कुछ आपके एलुमनाई जैसे हो जो बड़े ही रिच हो गए हो एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू योर इंस्टीट्यूशन and you want to bring them. So how to keep up these alumni right from the day they step out of the college and then they remain in their professional field, you have to remain in touch with them। आपकी कुछ अच्छी चीजें हो गई, आपके कुछ न्यूज रिपोर्ट्स हो गए, वो आप उनको सेंड करते रहेंगे, उनको भेजते रहेंगे, या आपका कोई एक सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पर उनको आप एंगेज करके रखेंगे। हो सकता है उनके लिए आप साल में एक बार छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारे चीजें जो है आपको नर्चर करनी है, उसको उनके साथ में एसोसिएट होना है, उनको एंगेज करना है, उसके लिए भी पॉइंट्स रखे गए हैं उस नैक में। So here also the role comes. Now we are coming to the criteria number 6. Okay. See, I think मनोज काशीकर जी, नैक और एनबीए जो है दोनों का अलग अलग रोल है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आगे जाने के पहले, both of them have there is nothing called as a better or nothing called as non-better। NBA has its own role and NAC is also having its own role। और हाँ, NBA एक्रेडिशन होगा तो आपके ज्यादा पॉइंट मिलेंगे क्या, ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है, क्योंकि NBA एक्रेडिशन और यानी कि NAC एक्रेडिशन बोथ एन ISO एक्रेडिशन they hardly matters in the NAC, but one thing is that आपकी क्वालिटी मेजरमेंट, कोई भी क्वालिटी बेंचमार्किंग का कोई भी, चले ISO हो, NBA हो, या आपकी लैब है तो NABH होना समझो एक्रेडिटेड हो, ये सारी चीजें मायने रखती है। ओके, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए आपकी बेंचमार्किंग में एक अलग अलग फिगर्स को ऐड करने के लिए ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका पूरी तरह से कोई महत्व नहीं, ऑफ कोर्स महत्व है, बट देयर इज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट महत्व आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ रोल इन द क्वालिटी बेंचमार्किंग ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। तो अभी जो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा क्राइटेरिया 6 की ओर, और उसके बाद में एक 10 मिनट और भी आपसे मैं चर्चा करने के लिए मैं समय रखता हूँ।
तो ये रहा आपका गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ओके, आपको ये बात तो आप मान के चलेंगे कि आप इस बात को मुझसे सहमत भी होंगे कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को इफेक्टिवली चलाने के लिए उसके पॉलिसीज होती है, और वो सारे पॉलिसीज प्रैक्टिस किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, रिक्रूटमेंट इन योर इंस्टीट्यूशन, जो रिक्रूट किए गए हैं उनको ट्रेनिंग के लिए किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी, हाउ, व्हाट इज द ट्रेनिंग प्रोसेस, और ट्रेनिंग देने के बाद में कोई भी व्यक्ति जिस काम कर रहा है, लेकिन काम की उसकी है ना क्या अप्रेजल होना चाहिए, उसको कहेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि आपका दिया हुआ काम पूरे साल भर में आपने कैसे परफॉर्म किया उसका अप्रेजल होना जरूरी है, ठीक है। और इसके साथ में आपका मैनेजमेंट कैसा है, फिनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है, और ये पूरी तरह से आपकी लीडरशिप, यानी कि आपके प्रिंसिपल या आपके मैनेजमेंट ये किस तरह से वो रोल निभाते हैं, ये इस चीज में, इसमें क्राइटेरिया नंबर 6 में कवर किया जाता है। इसलिए देखेंगे आप 5 की इंडिकेटर्स है इसमें, राइट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल विजन एंड लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, सारी चीज पर। जैसे मैं शुरू के इसमें बता दूं, क्या होता है कि किसी भी एक लीडरशिप की अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है, उसके एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, ओके, और फॉर्मल इनफॉर्मल गिव एंड टेक मेथड्स होती है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशंस के विजन को लेकर, मिशन को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हम कैसे बिल्डअप करते हैं, वो लीडरशिप के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अभी कोई भी लीडरशिप हो किसी भी इंस्टीट्यूशंस की, वो उसको डेवलप करने के लिए उसको इस तरह का विजन और मिशन रखना होगा, और वो विजन मिशन भले ही आप पहले डिफाइन करके रखे हो, लेकिन सिर्फ डिफाइन करके उसे लिखकर किसी ना वेबसाइट पे डालकर या आपके इंस्टीट्यूशन के किसी कोने में उसका बड़ा सा बोर्ड बनाकर उसे रखकर वो इंस्टीट्यूशन का विजन मिशन नहीं होता है, अनलेस यू ब्रिंग दैट विजन मिशन इनटू द प्रैक्टिस, okay, and you coordinate all your academic activities, administrative activities, supporting activities, uh, in in align with that, vision and mission, then you say your institution is making a difference to it. तो इस तरह की एक अलग अलग स्ट्रेटजी होती है अपने आप की। तो आप नेक्स्ट देखोगे कि सेकंड जो चीज कहता है कि स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है आपका विजन मिशन आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, उसे आप ट्रांसपेरेंसी कैसे आपके इस विजन मिशन में, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी कैसे है, और एकेडमिक ट्रांसपेरेंसी कैसे है, कि आपके डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, आपके गाइडलाइंस कैसे बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें इस है ना क्राइटेरिया के अंदर में देखी जाती है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट। और उसके साथ में हम फैकल्टीज को एनरिच करने के लिए हम किस प्रकार की सपोर्टिंग सिस्टम है, उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, कई अनेक कॉलेजेस, हमारे अनेक कॉलेजेस में ऐसे होता है कि आप ओरिएंटेशन कर रहे हो या आप इस प्रकार का आज का जो वर्कशॉप है भले ये फ्री हो, लेकिन यदि कोई समझो आपको 200-500 रुपए की भले इसको फी लगती, और आपको इस फी देने के लिए आपके कॉलेज ने कहा कि नहीं, वी विल गिव यू फाइनेंशियल सपोर्ट, ओके, तो उसको कहते हैं फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजीज। कौन सा, जैसे आपकी सीड फंडिंग है, कोई चाहता है कि मैं इस चीज में मैं एक चीज कुछ प्रकाशित करूं, तो उस प्रकाशित करने के लिए आपको फिनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, उसको हम कहेंगे सीड फंडिंग। तो आपका इंस्टीट्यूशन इस प्रकार की कोई सीड फंडिंग की व्यवस्था किया है क्या, तो ये भी हमको इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स हाउ, सो यू सी हैविंग दिस काइंड ऑफ एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजीज इज इम्पोर्टेंट वन है, ठीक है। और इसके साथ में आप देखोगे फिनेंशियल मैनेजमेंट है आपका, कुछ प्रोसीजर्स होती है आपकी फंड अलोकेशंस की, और फिनेंशियल अलोकेशन करने के बाद में उसकी यूटिलाइजेशन की उसके आपके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, ठीक है, और इन चीज को ट्रांसपेरेंट रखने की आपकी स्ट्रेटेजीज रहेगी, और उसका ऑडिट रहेगा आपका, रेगुलर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट होता रहेगा। ये सारी चीजें आपके गवर्नेंस, लीडरशिप और मैनेजमेंट में बहुत ही मायने रखती है, ओके। और जैसे आपका इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है, ओके, yeah, of course, SAISI, there is a funding for non-teaching staff. I think you must have your
see, staff welfare funds. Every institution should have a staff welfare funds, and उसमें institutions को decide करना है कि कितना वो fund उसको allocate करे. तो ये सही है कि आपको जिस अभी मान लीजिए साई जी, आपको ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू लर्न द एक्सेल इन अ वेरी बेटर वे, तो यू वांट टू हैव सम पीपल टू गिव यू द ट्रेनिंग. आपके यहाँ 3-4 लोग हैं जो हो सकता है कि उनको एक्सेल में ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उसके लिए पैसे देकर उसको हम लोग ट्रेनिंग करवा सकते हैं. यस, ऑफ कोर्स देयर इज अ फंडिंग सिस्टम. But again, that depends on the institution to institution, because again, we can't comment on the each and every institution. But almost all ideal institutions, qualitative institutions, they do have their own pool of funds which they allot for the higher education as well as for the enrichment of their existing competencies in them. भले ही वो learning system हो. Yeah, of course है, जरूरी है, लेकिन अभी institution to institution depend है वो तो. I don't know, मतलब government hasn't come out of with such kinds of a blueprint kind of protocols that ये इतना फंड इनको दे दीजिए, इतना फंड इनको दे दीजिए, ऐसे तो कुछ नहीं है. Anyway, so internal quality system यानी कि IQAC, जिसके बारे में अभी हम लोग ये करेंगे ही. Anyway, so लास्ट जो क्राइटेरिया जो जिसके बारे में मैं बात करूंगा, थोड़ा सा हल्का सा बात करूंगा, अभी ज्यादा तो उसमें बात करने के लिए. इसमें 3 की इंडिकेटर्स हैं. वो तीनों की इंडिकेटर्स अलग अलग चीजों पे होती है. जैसे मैंने कहा आपको पहला, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ ये थोड़ा सा मुझे आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा आपके साथ में. या थैंक यू उज्ज्वला जी एंड सुनीता जी फॉर योर गुड कमेंट्स. इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको. जेंडर इक्विटी प्रमोशन प्रोग्राम्स, sensitivity issues like climate change, environmental issues, या environment friendly practices जैसे energy conservation, rainwater harvesting, water cycling, okay, waste material cycling, solid liquid waste management, e-waste management, okay, or carbon neutral practices, green practices. As I said initially period, that we are looking forward that not only as just one institution, that almost all the institutions across the India should go for a green practices. Less paperwork, okay, less paperwork and more digital work. So that is very important. But again, it all depends on then how each institution will support for these kinds of practices. And I see that these things should come in a very major way. कि गवर्नमेंट भी ये बोलना चाहिए कि आपको इतना आपको डिजिटलाइज करना ही होगा, ये सारे सर्विसेज आपको डिजिटलाइज करने ही होंगे. बट अगेन इट डिपेंड्स नाउ वेदर इट वर्क्स. नहीं तो ऐसे हो कि हम डिजिटलाइजेशन की बात करें लेकिन मुंबई के कई इलाकों में भी है ना नेटवर्क काम नहीं करता है. ये भी एक है चीज है, तो खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा मैं. थैंक यू सुप्रिया जी, आनंद जी फॉर योर गुड कमेंट्स. सो एंड देन लाइक लास्ट चीज, जो इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज कैसे, मतलब यानी कि आपके स्टूडेंट में डिफरेंट एबल्ड बच्चे हैं, दिव्यांगन हैं आपके यहाँ, तो उनके लिए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कैसा किया आपने. ओके, और आपने जैसे इफेक्टिव लोकेशन को डील करने की बात है, सिचुएशन कैसे क्रिएट करने की बात है. ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, वैल्यूज को लेकर हमें काम करने की जरूरत है. ठीक है, सो these are very interesting part. Okay, so thanks Pratiksha ji for your giving this such a good kind of this one. Okay, differently able दिव्यांग and friendly वगैरह effective dealing करने के लिए हम लोग किस प्रकार के facilities को create करते हैं, ये सारी चीजें हैं. We will all check it about. Anyway, so what I mean to say here is it's very important to understand all these institutional values from the social responsibilities part of the best practices भी है उसमें. Okay, brief best practices भी है. Okay, और brief practices या best practices कौन-कौन से हैं वो थोड़ा उसको अलग से हम लोग लेंगे. लास्ट जो है institutional distinctiveness जिसको कहेंगे हम लोग, ये important है institutional distinctiveness. See, every institution should be recognized as one of the distinct institute. Why this is a distinct institute? What are its attributes? Okay, why do you call, and what kind of reflection does that institution make?
So the focus should be always on your best practices. As I said कि कोई इंस्टीट्यूट ऐसी है जो आदिवासी इलाके में गरीब बच्चों को वो शिक्षा प्रदान करती है और उनको अलग अलग फैसिलिटीज क्रिएट करने के इस पर काम करती है, तो उसका एक इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस होगा. So that's a very important for us to understand from that point of view. ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो 7 क्राइटेरिया है, सातों क्राइटेरिया टोटल 1000 मार्क्स के लिए होती है. ओके, और उसके मैट्रिक्स की तो मैंने पहले से ही बात की है. ओके, ग्रेडिंग की भी मैंने आपको बात की है. ठीक है, अब ये जो स्कोर बताता है आपको कि किस तरह से वेटेज होगा पूरी तरह से. ठीक है, प्री क्वालिफायर की भी हमने पहले से ही बात की है. स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे कैसे किया जाता है, ये छोटा सा आपको बताता हूँ. क्या होता है कि प्रोग्राम में जैसे आप डेटा उनको भेजेंगे, डेटा भेजने के बाद में उनके जो लिंक है ना एक्टिवेट हो जाती है उनके ईमेल पर, उनके फोन पर. ठीक है, एक स्टूडेंट लॉगिन बनाया जाता है नैक की तरफ से, जहां पर बच्चों को अपना विचार यानी कि अपना ना फीडबैक देने के लिए उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है. और इसमें मिनिमम मैं कहता हूं कि 100 मैंने कि मान लीजिए 500 बच्चों का आपने डेटा दिया, उसमें 100 तो बच्चों का रिस्पांस आना चाहिए. ठीक है, तो दैट इज हाउ दिस सिस्टम ऑफ स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे वर्क्स इन द डेटा वैलिडेशन. ठीक है, तो ये हो गया आपका ये असेसमेंट का पार्ट. तो अभी लास्ट जो चीज है मैं आपको 2 मिनट में बताकर मैं इसको थोड़ा सा खत्म करता हूँ. आपके कुछ विचार हो तो मैं आपसे थोड़ा और भी उससे बात करेंगे. एक तो मेन क्या है, 3 स्टेजेस में ये सारा प्रोसेस होता है इसका असेसमेंट का, नैक असेसमेंट का. सबसे पहले आप IIQA जिसको मैंने अभी बताया आपको कि वो आपको भरना होता है नैक के वेबसाइट पर जाकर. फिर बाद में आपको डेटा प्रोवाइड करना होता है जो स्टूडेंट डेटा वैलिडेशन होगा वो थर्ड पार्टी के द्वारा. और तीसरा होता है असेसमेंट जो एक्चुअल असेसमेंट होगा आपका. ठीक है, ये प्रोसेस इस प्रकार से जाएगी. ये जैसे देखेंगे बेसिक इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन और कंपाइलेशंस हो और उसका इनपुट्स डेटा इनपुट्स हो आपका, और आपने एप्लीकेशन फी भरी हो, उसके बाद में वेरिफिकेशन के लिए गया हो, तब है ना IIQA या तो आपका क्या होता है एक्सेप्ट किया जाएगा, तो आपको SSR भरने के लिए अलाउड किया जाएगा. ठीक है, और एक्सेप्ट नहीं होगा तो आपको रीसबमिट करना पड़ेगा, वापस से वो सारा इंफॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा. ठीक है, और ये सारी इसके लिए अवधि रखी है ओनली 2 months 45 days, दैट्स इट. और यहाँ पर जो SSR की प्रोसेस है, डेटा कलेक्शन के लेकर डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन हो, उसका सर्वे हो या उसका इवैल्यूएशन प्रोसेस हो. ठीक है, और लास्ट जो होता है ये प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पूरी तरह से मार्किंग आपकी 70% ऑफ योर एंटायर वर्क इज डन हियर. ऑन साइट असेसमेंट के लिए जिसको पीयर टीम विजिट के लिए ओनली 30% ऑफ द वर्क इज रिमेनिंग. ठीक है, फिर बाद में आपको क्या होगा, ग्रेड मिलेगा. ग्रेड मिलने के बाद में आपको एक्रेडिट करके घोषित किया जाएगा. यदि मान लीजिए आपको नॉन एक्रेडिट किया तो अपील कर सकते हैं रीअसेसमेंट के लिए. 1 साल के बाद में फिर से जा सकते हैं. ठीक है, या हो सकता है आपको एक्रेडिट किया हो और 5 साल के बाद में फिर से आप इसको रीएक्रेडिटेशन के लिए जा सकते हैं. तो इस तरह की ये सारी नैक की प्रोसेस है. उसके बाद में आपको पता है कि नैक क्यों जरूरी है, उसके कंसर्न्स क्या है ऑल. So I'll not go for all these details. What I want to say is NAC accreditation is a very essential and a very important mandatory activity of every institution to get accredited, so that we have a complete benchmarking for all our work what we do in our entire institutions. अब ये मेरा थोड़ा छोटा सा प्रेजेंटेशन था. इसके बावजूद भी आपके कुछ विचार है या आपका कुछ if you have any feedback to just to me, please the forum is open for discussion, please. Thank you, sir, for such a fascinating talk. I'm sure there'll be a lot of questions, a lot of queries, and the great part is actually you took so many queries in your address itself. So that actually gave very prompt responses, because sometimes what happens is immediately after hearing something, questions start coming to one's mind.
and you are fantastic addressing them there and there. So for the participants also, I can see that the query is solved and the next part was easier for them to grasp. We'll just wait in the chat section in case anyone is putting a question in the chat section. आप सबसे विनती है पार्टिसिपेंट से कि अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ समझा नहीं है या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए नैक के रूल्स के बारे में या उनके गाइडलाइंस के बारे में या क्राइटेरियाज जैसे सर ने डिस्कस किए, तो आप जरूर चैट बॉक्स में आपके सवाल डाल सकते हैं. आय थिंक सर कौतुक जास्त आहे. चॅट बॉक्स तुम्ही पण बघत असालच की मी जसं म्हणत होतो तसंच सगळ्या पार्टिसिपेंट्सचं पण तेच म्हणणं आहे की हे सेशन अप्रतिम झालं आणि एवढी माहिती नॅकची सगळ्या क्रायटेरियाजची आणि त्याबरोबरच नॉन टीचिंगची केवढी महत्वपूर्ण भूमिका असते कुठल्याही शिक्षण संस्थेत, हे महत्व पण जे तुम्ही दाखवलं हे खरंच अतुलनीय आहे. पार्टिसिपेंट्सना सगळ्यांना सांगण्यात येते की फीडबॅक फॉर्म हा चॅटमध्ये दिला गेलेला आहे, तर फीडबॅक फॉर्म जरूर भरा आणि त्याबरोबरच सेशनचं तुम्ही जसं भरभरून कौतुक करताय तसंच काही तुमच्या मनात प्रश्न असतील, सरांनी अर्थातच त्यांच्या प्रेझेंटेशन्समध्ये बऱ्यापैकी सगळेच प्रश्नांचं उत्तरं दिलेली आहेत, पण तरीही काही मनात प्रश्न असतील किंवा शंका असतील तर जरूर चॅट बॉक्समध्ये तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. फीडबॅक फॉर्मच्या बद्दल मनोज काशीकर सर, फीडबॅक फॉर्म हा झूम चॅटमध्येच टाकलाय, वर तुम्ही थोडंसं जाऊन बघू शकता. सहकार्यांना विनंती करतो की त्यांनी परत टाकावा फीडबॅक फॉर्म लिंकमध्ये आणि त्याबरोबरच व्हॉट्सॲप ग्रुप आणि टेलिग्राम ग्रुप जे आहेत आपले त्यावर सुद्धा फीडबॅक फॉर्म टाकला जाईल, त्याच्यामुळे जरूर तो भरा आजच्यासाठी. सत्यवान सर, काही प्रश्न दिसत नाहीयेत आपल्याला, तुम्हाला जर काही. थँक्यू. जर प्रश्न जरी दिसत नसले तरी पण तरी सुद्धा they are always free to write to us anytime. Our emails, our phone numbers are also available on our website, and we'll always be happy to provide any kind of information they need it. So we are always open to them. Okay. I think two quick questions which have come is one is NAC can be taken only for colleges or for schools, but I think NAC is only for higher education. For colleges, of course. Yeah. So it's only colleges and universities जो NAC के लिए होते हैं, schools के लिए NAC नहीं होता. And sir, एक और सवाल आपको जो पूछा गया है is third party non teaching staff consider करतात का technical staff ला जो third party असतो? I didn't understand what is the basic question. Third party. I think मला जसा अंदाज वाटतो या प्रश्नावरनं, ये सवाल ऐसा होगा कि IT अभी फिलहाल कोविड की वजह से IT के लिए शायद आउटसोर्स किया होगा जॉब कुछ, तो उनको भी नॉन टीचिंग कंसिडर किया जाएगा क्या? I think that is what it is being asked. The third party staff will not be considered to my knowledge, but again I don't know what are the technicalities in it. Though they are contributing to the institution's progression, but whatever my understanding goes in the NAC criteria and the calculation of all the details, there is no criteria or no question or any indicator which actually brings up the issue of third party third party staff anywhere in the college. थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्या है, थोड़ी सी अलग टाइप की कंसेप्ट है. अभी कुछ जगह पर जैसे गौरव जी ने बताया कि जैसे अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है और ऐसे हो रहा है कि हमें बाहर कुछ आईटी की जरूरत पड़ती है, तो उनको हम लोग कंसिडर करें क्या? हो सकता है ये अभी आगे से ऐसे सवाल आएंगे तो इस तरह की चर्चा हो जाएगी, तो नैक इस तरह से सोचेगी. लेकिन जहां तक आज अब इस नैक का जो 7 क्राइटेरिया को देखोगे आप, तो वहां पर उनका कोई चीज किसी चीज का मेंशन नहीं है, किसी प्रकार के मार्क्स भी अलॉट नहीं किए गए उनको. ओवर टू यू गौरव. Yes, thank you so much, sir. I think one last question before we can wind up today's session. I think Mugdha Deshpande madam has asked a question that non-teaching में technical and non-technical ऐसा bifurcation होता है क्या? No, nothing like that as of now. There is nothing. You can talk in terms of
especially if you go for medical and engineering, programs or engineering courses or medical courses, there is distinction between technical and non-technical non-teaching staff. जैसे लैब टेक्नीशियन है, जो टेक्निकल स्टाफ है, वो अभी ऑफिस में काम करता है तो नॉन टेक्निकल है, लेकिन आप बाकी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या इन जो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, वहां पर किसी प्रकार का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. इवन लैब टेक्नीशियन इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ नॉन टीचिंग स्टाफ. राइट, थैंक यू सो मच सर. ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के बिहाफ से और उसी के साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट्स के बिहाफ से हम आपको मन से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना बेहतरीन सेशन लिया. इट वाज अ चैलेंज सर कि 1.5 घंटे में नैक के गाइडलाइंस और उनके बहुत सारे नियम और नियमावली जो है उसको प्रस्तुत करना इतने आसान और सहज तरीके से, जितना आपने बड़ी कुशलता से पिछले 1.5 घंटे में हमारे लिए किया है. और मैंने जैसे कुछ वक्त पहले कहा, इट वाज नॉट ओनली speaking about the important points or important rules which are there of NAC, और उसी के साथ साथ सवाल जो आते गए साथ में उनको भी आपने आपके प्रवाह में सेशन के जोड़े रखा और उनका भी सॉल्यूशन जो है वहीं के वहीं दे दिया. So it was an enlightening talk, it was a very informative talk, and along with that it was also a very interactive session, sir, that you have held with us today. I know we are a part of the same family, and there is no formality or a requirement as such, but still I would really like to thank you on behalf of all the participants for a wonderful session that was conducted today. Before leaving, 2 things. Obviously, the first thing is वापस आप सभी participants को याद दिलाना मेरा कर्तव्य है कि फीडबैक फॉर्म की लिंक Zoom चैट के ऊपर और Zoom चैट के साथ साथ Telegram और WhatsApp के ग्रुप्स पर शेयर कर दी गई है. तो जरूर फीडबैक की लिंक भरिएगा, क्योंकि फीडबैक की लिंक कुछ समय के बाद ये क्लोज कर दी जाएगी और उसके बाद ये वापस ओपन नहीं होगी. सो आप सबसे दरख्वास्त कि आप फीडबैक की लिंक जरूर भरें. एंड बिफोर वी एंड द सेशन, एज इज आवर ट्रेडिशन, विल बी प्लेइंग द नेशनल एंथम. सो अ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ओवर देयर टू प्लीज स्टैंड फॉर द नेशनल एंथम. विल बी प्लेइंग द नेशनल एंथम शॉर्टली. Thank you for being a part of this session. We declare today's session to be over and we'll meet tomorrow at 4 p.m. to continue with a 7-day workshop. Thank you so much. Mayur, I think we can close the session today. Thank you. Okay, we stop करतो recording. Yes.